ચલો આજે આપણે લોંગ એન્ડ શોર્ટની થિયરી શીખીએ છીએ. લોંગ એન્ડ શોર્ટ જે એમ્બ્રોઇડરીનો સ્ટીચ છે જેમાં શેડિંગ માટે કામ લાગે છે. આપણે બહુ બધા સ્ટીચીસ એમ્બ્રોઇડરીના શીખેલા છે કે જેમાં અલગ અલગ આઉટલાઇન સ્ટીચીસ હોય ને કાં તો ફિલિંગ અપ સ્ટીચીસ હોય, જેમાં ફક્ત આઉટલાઇન થાય છે અને આપણે આઉટલાઇન સ્ટીચીસ કહીએ છીએ અને જે આખું અંદરથી ફિલઅપ કરીએ છીએ, કોઈ પણ ફ્લાવર હોય, લીફ હોય, પત્તી હોય કે કોઈ પણ શેપ હોય તો એને આપણે જ્યારે આખું ફિલઅપ કરવું હોય તો લોંગ એન્ડ શોર્ટ ટાંકો એવો છે કે જે આપણને કામ લાગે છે. ફિલિંગ અપ સ્ટીચીસમાં આપણે શીખ્યા હતા કે કાંથા સ્ટીચ છે એ બી અંદર ફિલિંગ અપ થાય છે. પછી હેરિંગબોન સ્ટીચ છે જેને આપણે સાદું ભરત કહીએ છીએ, એ પણ અંદર ફિલઅપ કરવામાં કામ લાગે છે. એ પછી સાટિન સ્ટીચ છે એ પણ કામ લાગે છે અને એ પછી કાશ્મીરી સ્ટીચ છે એ પણ કામ લાગે છે. હવે દરેક સ્ટીચના પોતાના લિમિટેશન્સ હોય છે. ઓકે, બીકોઝ કાંથા સ્ટીચ એવો છે કે જ્યાં તમે કરી શકો એ બધી જ જગ્યાએ કાંથા કરી જ શકો એવું પોસિબલ નથી. સાટિન જ્યાં તમે કરી શકો છો કે એક લીફમાં કરી શકો છો તો એ મોટો શેપ હોય તો સાટિન તમને કામ લાગવાનું નથી. સિમિલરલી જ્યારે હેરિંગબોન તમે કરશો તો હેરિંગબોનની પત્તી હશે કે લીવ્સ હશે એમાં જ કામ લાગશે. એ સિવાય કોઈ મોટો શેપ હશે, તમારે હટ બનાવવું છે, તમારે ફ્રોક બનાવવું છે ડોલનું, એવું કંઈક તમારે એમ્બ્રોઇડરી કરવી છે તો એમાં તમને હેરિંગબોન કામ લાગવાનું નથી. રાઈટ? સો એવી બધી જગ્યાએ કે જ્યાં અલગ અલગ એવા શેપ્સ હોય કે જે ટોટલી ડિફરન્ટ હોય અને બહુ જ ફિલઅપ કરવાનું છે તમારે, તમે મોટી ફ્રેમ બનાવો છો, તમે કોઈ ઘડિયાળ બનાવો છો, તમે વોલપીસ બનાવો છો અથવા તમે મોટો યોગ બનાવો છો, તમારે ઇવન આવું તમારે શેડિંગ વર્ક કરવું છે. ઓકે, તો તમે લોંગ એન્ડ શોર્ટ તમારા માટે બેસ્ટ થઈ જાય છે. એટલે લોંગ એન્ડ શોર્ટ એવો સ્ટીચ છે કે જેમાં તમે જ્યારે તમારે શેડિંગ કરવું હોય ખાસ કરીને અને કોઈ મોટા શેપ્સમાં ફિલઅપ કરવું હોય ત્યારે તમને લોંગ એન્ડ શોર્ટ બહુ જ કામ લાગે છે. ઓકે, એટલે સમજો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જ્યાં કાંથા નથી કરી શકતા, હેરિંગબોન નથી કરી શકતા, સાટિન નથી કરી શકતા, કાશ્મીરી નથી કરી શકતા, એવી જગ્યાએ જ્યારે તમને કંઈક ફિલિંગ અપ કરવું હશે ત્યારે ફાઇનલી તમને લોંગ એન્ડ શોર્ટ કામ લાગશે. લોંગ એન્ડ શોર્ટ એવો સ્ટીચ છે જે કોઈ પણ શેપમાં તમે ભરી શકો છો, કોઈ પણ શેપમાં. એટલે તમારે કોઈ ફ્લાવર કરવું છે અને આ ફ્લાવરની ઇફેક્ટ આપવી છે અને એમાં ખાસ કરીને શેડિંગ ઇફેક્ટ આપવી છે. ખાસ આમાં શેડિંગ ઇફેક્ટ જે ફ્લાવર્સમાં અધરવાઇઝ હોય છે એ ઇફેક્ટ તમારે આપવી હોય તો સ્પેશિયલી તમને લોંગ એન્ડ શોર્ટ જ કામ લાગશે. તમે ન તો સાટિનથી, ન કાશ્મીરીથી, ન હેરિંગબોનથી, ન કાંથાથી તમે શેડિંગ ઇફેક્ટ આપી શકશો. શેડિંગ ઇફેક્ટ માટે ઓનલી લોંગ એન્ડ શોર્ટ કામ લાગે છે. રાઈટ? એટલે લોંગ એન્ડ શોર્ટ સારામાં સારો સ્ટીચ એ રીતે છે. એ સિવાય સમજો કે તમારે આ હટ છે, मारे आनी एम्ब्रॉयडरी करनी है, मारे आई वांट टू एम्ब्रॉयडर दिस, मुझे ये बनाना है एम्ब्रॉयडरी करके पूरा, मैंने कोई फ्रेम बनाई है और इसको मैंने एम्ब्रॉयडरी करना है. ठीक है, तो अब इसमें मैं साटिन कर पाऊंगी नहीं, इतना लंबा है तो साटिन कहाँ से करूंगी. राइट? फिर अगर हेरिंगबोन करना है तो ऐसे हेरिंगबोन कहाँ से होगा? नहीं होगा. काश्मीरी होगा? नहीं होगा. कांथा होगा? नहीं. कांथा होगा, कांथा कर सकते हो आप, लेकिन फिर वो लाइट होगा. कांथा और काश्मीरी लॉन्ग एंड शॉर्ट में फर्क ये है कि कांथा बहुत लाइट इफेक्ट देता है आपको और लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है वो पूरा फीलिंग अप का इफेक्ट आपको देता है. सो ऐसा कुछ अगर होगा तो आप इसमें आप लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच करके पूरा आप इसको फिल अप कर सकते हो और पूरा जहां तक करना है कर सकते हो. कितना भी शेप हो, कितना भी लंबा शेप हो, कितना भी बड़ा शेप हो, आप लॉन्ग एंड शॉर्ट करके कर सकते हो. साथ ही साथ इसमें भी अगर आपको शेडिंग इफेक्ट देनी है कि लाइट डार्क इफेक्ट की इमेज देनी है कि चलो साथ ही साथ इसमें शेडिंग भी देना है तो भी आप दे सकते हो. क्लियर? तो लॉन्ग एंड शॉर्ट नॉर्मली आपको इस तरीके से काम लगता है. अब लॉन्ग एंड शॉर्ट हमको करना कैसे है? जब ऐसी कोई पत्ती होगी आपके पास, नॉर्मली फ्लावर्स की ये जो पत्तियां होती है ये शेप की, हार्ट शेप की, उसमें या फिर एज फॉर एग्जांपल यही चीज है लेकिन ऐसी है. चलो, तो ऐसी पत्तियों में आप हेरिंगबोन भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये दो पार्ट्स हो रहे हैं, साटिन भी नहीं कर पाओगे, काश्मीरी भी नहीं कर पाओगे, एंड आपको शेडिंग इफेक्ट के साथ करना है. तो ऐसी पत्तियों में स्पेशली लॉन्ग एंड शॉर्ट बहुत काम लगता है एम्ब्रॉयडरी में. ओके, तो ये हम कैसे शुरू करेंगे? अगर ये हमने दो पत्ती करनी है तो आपने इसके पार्टीशन कर देने हैं. समझ लो कि जितना बड़ा आपका शेप है उतना बड़ा आपको पार्टीशन देना है. मतलब क्या कि दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट. अगर इतनी पत्ती है तो आपको 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है. अगर इससे बड़ा शेप है फॉर एग्जाम्पल तो आप उसको 3 या 4 पार्ट भी दे सकते हो कि समझो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 4 भाग भी आप कर सकते हो. जितना बड़ा शेप उतने आप कर सकते हो. अच्छा, दूसरा कि जितने शेड्स आपको लेने हैं, अगर पत्ती है, लीफ ऐसा मतलब फ्लावर की पेटल है तो आपको 3 शेड्स में ज्यादा काम करना है. मतलब 3 लाइट टू डार्क 3 शेड्स. अगर हमको ये चीज पिंक कलर में करनी है तो लाइट पिंक, डार्क पिंक एंड सबसे डार्क पिंक, ऐसे 3 शेड्स हमको लेकर के काम करना होगा. ठीक है, तो सबसे डार्क जो कलर होगा वो सबसे अंदर रहता है, मतलब सबसे डार्क वाला कलर यहाँ आएगा. तो सबसे डार्क वाला जो शेड होगा, शेड 1, शेड 2 एंड शेड 3. शेड 1 जो है वो डार्केस्ट है, ये डार्केस्ट शेड हम अंदर लेंगे. जो मिडल वाला शेड होगा, मीडियम वाला, वो यहाँ लेंगे और जो लाइट वाला शेड होगा वो यहाँ लेंगे.
अगर हम पिंक कलर का करना चाहते हैं, फ्लावर बनाना, रोज बनाना चाहते हैं, तो समझो पिंक कलर ले लिया। कभी हमें सनफ्लावर जैसा कुछ बनाना है तो ऑरेंज कलर ले लिया, पर्पल कलर ले लिया, रानी कलर, कोई भी कलर आप ले सकते हो एम्ब्रॉयडरी में जो लेना है आपको। पर डार्केस्ट कलर आप अंदर दोगे। अब करोगे कैसे कि डार्केस्ट कलर से आप शुरू करोगे, मतलब जब भी आपने वो डार्क शेड लिया, 1 नंबर वाला शेड जो डार्केस्ट है, उसको लेकर के आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले एक स्टिच यहाँ से लेना है, फर्स्ट स्टिच यहाँ, उसके बाद सेकंड स्टिच यहाँ, थर्ड स्टिच सेंटर में जाना चाहिए, सेंटर में, फोर्थ स्टिच अगेन यहाँ एंड फिफ्थ स्टिच यहाँ। ऐसे हमने 5 स्टिच लेना है। लेकिन इसको भी मैं समझा दूं कि कैसे लेना है, बिकॉज द नेम सेज लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब पहला टाका आपका जो भी होगा वो लाइन पे होगा, आउटलाइन पे, और लॉन्ग होगा। ओके, उसके बाद आपने जो सेकंड स्टिच लेना है साइड में, वो उससे छोटा होगा। ओके, तो शॉर्ट आया। उसके बाद जो दूसरा आएगा वो अगेन लॉन्ग आएगा, फिर एक शॉर्ट आएगा, फिर एक लॉन्ग आएगा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इज कि जो भी लंबे टाके हैं आपके, जो भी लॉन्ग स्टिचेस है, वो सब सेम नहीं होने चाहिए। अभी तक हमने सभी एम्ब्रॉयडरीज में ये सिखा है यहाँ पर कि जितने भी टाके हो सब सेम होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम करना है हमने, स्टिच की लेंथ सेम रखनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऐसा स्टिच है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल अलग रहना चाहिए, मतलब हर लंबा टाका भी उसकी लेंथ की वेरिएशन होनी चाहिए और हर छोटा टाका भी अलग होना चाहिए। मतलब जब हमने ये 5 स्टिचेस से स्टार्ट किया है तो 5 स्टिचेस आपके अलग अलग लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, नो स्टिच शुड मैच ईच अदर। एक स्टिच दूसरे स्टिच जितना कभी नहीं होना चाहिए। हर एक 5 अलग अलग लेंथ के टाके होंगे और पहला लंबा होगा, दूसरा उसके कंपैरिजन में छोटा होगा, तीसरा उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, चौथा उसके कंपैरिजन में छोटा होगा और 5वां उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। ये स्टार्ट करने के बाद आपने ये शेड 1 हमने ले करके काम कर रहे हैं हम। डार्केस्ट से अंदर रहता है, मतलब सबसे डार्क वाला कलर यहाँ आएगा, तो लास्ट सबसे डार्क वाला जो शेड होगा, शेड 1, शेड 2 एंड शेड 3। शेड 1 जो है वो डार्केस्ट है, ये डार्केस्ट शेड हम अंदर लेंगे। जो मिडल वाला शेड होगा, मीडियम वाला, वो यहाँ लेंगे, और जो लाइट वाला शेड होगा वो यहाँ लेंगे। अगर हम पिंक कलर का करना चाहते हैं, फ्लावर बनाना, रोज बनाना चाहते हैं, तो समझो पिंक कलर ले लिया। कभी हमें सनफ्लावर जैसा कुछ बनाना है तो ऑरेंज कलर ले लिया, पर्पल कलर ले लिया, रानी कलर, कोई भी कलर आप ले सकते हो एम्ब्रॉयडरी में जो लेना है आपको। पर डार्केस्ट कलर आप अंदर दोगे। अब करोगे कैसे कि डार्केस्ट कलर से आप शुरू करोगे, मतलब जब भी आपने वो डार्क शेड लिया, 1 नंबर वाला शेड जो डार्केस्ट है, उसको लेकर के आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले एक स्टिच यहाँ से लेना है, फर्स्ट स्टिच यहाँ, उसके बाद सेकंड स्टिच यहाँ, थर्ड स्टिच सेंटर में जाना चाहिए, सेंटर में, फोर्थ स्टिच अगेन यहाँ एंड फिफ्थ स्टिच यहाँ। ऐसे हमने 5 स्टिच लेना है। लेकिन इसको भी मैं समझा दूं कि कैसे लेना है, बिकॉज द नेम सेज लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब पहला टाका आपका जो भी होगा वो लाइन पे होगा, आउटलाइन पे, और लॉन्ग होगा। ओके, उसके बाद आपने जो सेकंड स्टिच लेना है साइड में, वो उससे छोटा होगा। ओके, तो शॉर्ट आया। उसके बाद जो दूसरा आएगा वो अगेन लॉन्ग आएगा, फिर एक शॉर्ट आएगा, फिर एक लॉन्ग आएगा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इज कि जो भी लंबे टाके हैं आपके, जो भी लॉन्ग स्टिचेस है, वो सब सेम नहीं होने चाहिए। अभी तक हमने सभी एम्ब्रॉयडरीज में ये सिखा है यहाँ पर कि जितने भी टाके हो सब सेम होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम करना है हमने, स्टिच की लेंथ सेम रखनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऐसा स्टिच है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल अलग रहना चाहिए, मतलब हर लंबा टाका भी उसकी लेंथ की वेरिएशन होनी चाहिए और हर छोटा टाका भी अलग होना चाहिए। मतलब जब हमने ये 5 स्टिचेस से स्टार्ट किया है तो 5 स्टिचेस आपके अलग अलग लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, नो स्टिच शुड मैच ईच अदर। एक स्टिच दूसरे स्टिच जितना कभी नहीं होना चाहिए। हर एक 5 अलग अलग लेंथ के टाके होंगे और पहला लंबा होगा, दूसरा उसके कंपैरिजन में छोटा होगा, तीसरा उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, चौथा उसके कंपैरिजन में छोटा होगा और 5वां उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। ये स्टार्ट करने के बाद आपने ये शेड 1 हमने ले करके काम कर रहे हैं हम, डार्केस्ट शेड लेकर के हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा राउंड 1 है, ऐसा हम बोलेंगे। राउंड 1 में हमने 5 टाके लिए हैं। राउंड 2 में हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जहाँ लंबा टाका लिया है हमने, क्योंकि हम यहाँ से करते करते यहाँ पे आए हैं, तो जब जहाँ लंबा टाका है वहाँ हम छोटा टाका लेंगे, जहाँ छोटा है वहाँ पे हम लंबा करेंगे वापिस, जहाँ पे लंबा है वहाँ हम छोटा करेंगे, और छोटा है वहाँ पे वापस लंबा करेंगे, और जहाँ लंबा है वापस हम छोटा करेंगे। तो जितने जितने टाके हैं जो बड़े बड़े हैं तो वहाँ छोटा करेंगे, छोटा है तो वहाँ बड़ा करेंगे। उसके अलावा सेकंड राउंड में हम एक और एक्स्ट्रा टाके भी यहाँ बीच बीच में ऐड करना शुरू करेंगे। एक स्टिच और ऐड होता जाएगा बीच बीच में, जो कि अगेन एक छोटा, एक लंबा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा होता जाएगा। फाइन, तो हमने 5 स्टिच से जब शुरू किया था तो 5 स्टिच की जगह अब हमारे पास 10 स्टिच हो गए होंगे, क्योंकि एक 5 स्टिच के ऊपर एक हमने किए हैं और उसके बीच बीच में भी एक हमने ऐड करे हैं, तो 5 की जगह हमारे 10 स्टिच हो गए। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट हमने पार्टीशंस मैंने क्यों करवाए थे आपको,
ये पार्टीशन इसलिए करवाए थे कि ये समझ के चलना है कि फर्स्ट पार्ट वाला धागा ये फर्स्ट पार्ट में रहेगा, फर्स्ट शेड हमारा फर्स्ट पार्ट में रहना चाहिए और वो थोड़ा थोड़ा सेकंड पार्ट में भी जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने थोड़ा और एक राउंड लेना होगा, जो कि और हम इस राउंड में जाएंगे। ये छोटे बड़े कुछ स्टिचेस हमने इधर डालने होंगे अभी आगे, जो कि सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट शेड जाएगा, सेकंड पार्ट में, तब जाकर के ऐसे इंटरमिंगल होगा, तब जाकर के शेडिंग बनेगा, ठीक है। और कोई धागा ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो आपने ध्यान रखना है, फाइन। तो इस तरीके से हमने ये लिया। उसके बाद अब हम समझ लो कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट भर गया है और फर्स्ट पार्ट में हमने और यहाँ पे गैपिंग रखना है कि जब हम सेकंड धागा चालू करेंगे तो वो उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट भर दिया है। अब भरने के बाद हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए अगेन हम सेकंड धागा लेंगे, जो कि हमारा मीडियम शेड है, वो लेकर के जब हम शुरू करेंगे तो फाइन अगेन सेम तरीके से कि जहाँ पे लॉन्ग धागा है वहां पे हमने शॉर्ट लेना है, जहाँ पे शॉर्ट है वहां हमने लॉन्ग लेना है। इस तरीके से हम लेना शुरू करेंगे, इसके ऊपर और जाएंगे और जो हमने यहाँ गैप रखा है उसके अंदर आपने जाना है, गैप भरते जाना है, ताकि वो सेकंड वाला शेड भी हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट शेड के अंदर भी आता रहेगा और नए धागे भी, नए स्टिचेस भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। दूसरा ध्यान ये रखना है आपने कि आपने ये डायरेक्शन मेंटेन करनी है। अगर आप डायरेक्शन मेंटेन नहीं करोगे, यहाँ से करते करते यूं चले जाओगे तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो टू टेक केयर कि जो डायरेक्शन में आपने शुरू किया था, मतलब ये जो 5 हमने पहले धागे लिए थे वो पहले 5 टाकों का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को ऊपर तक आपको अपने मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये 5 डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए आप काम करो। एंड ये ब्लू धागे मतलब मैं ब्लू से दिखा रही हूँ आपको, वो मीडियम वाला सेकंड वाला धागा है, वो आप अगेन लॉन्ग शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, बीच वाली जगह भरते जाओ और नया टाका ऐड करते जाओ। इस तरीके से आपको करते जाना है। तो एक राउंड इसका किया ब्लू का, वापस सेकंड राउंड करो, वापस थर्ड राउंड करो, जितनी जरूरत पड़े। देखो आपकी कहाँ तक आप हो, यहाँ कितना गैपिंग बचा है। मेरे को करते करते दो राउंड लगे इसके, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो 2 राउंड में मेरी ये सेकंड स्पेस भर गई ऑलमोस्ट। एंड मेरा वो सेकंड जो धागा है वो थर्ड पार्ट में भी जाना चाहिए, वो ध्यान रखना है आपने। तो वो गया, ठीक है। उसके बाद अब जब आप थर्ड अब ये सेकंड भर गया है, तो अब मैं थर्ड वाला लाइट वाला जो मेरा धागा है वो ले लूंगी, वो लाइट वाला शुरू करूंगी लेते हुए। एंड देन उसको जब करूंगी मैं, तो यहां से शुरू करना होगा मुझे कि ये लेना शुरू करूंगी यहां से ऐसे। अब ऊपर की आउटलाइन का मुझे ध्यान रखना है और दूसरा अंदर जितनी जगह बाकी रही है वो भी मैंने फिलअप करनी है। इस तरीके से ऊपर का जो है वो एक्चुअली तो यहाँ से करते करते मैं जाने वाली हूँ ऐसे। ये मेरा थर्ड वो रहेगा और उसका वो सेकंड पार्ट में भी जाएगा। मेरा जो थर्ड वाला है वो सेकंड पार्ट में भी जाएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि वो सेकंड में भी जाएगा और थर्ड में भी जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा अगेन लॉन्ग शॉर्ट करते 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 आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में बिल्कुल ऊपर से आउटलाइन को मेंटेन करते हुए आपने काम करना होगा। इस तरीके से पूरा आउटलाइन को मेंटेन करते हुए आपने पूरा स्टिचेस भरना होगा। ऐसे जब हम करेंगे तब जाकर के आपकी पूरी ये पत्ती शेडेड लगेगी और पूरी ऐसे फिलअप होगी। तो दिस इज लॉन्ग एंड शॉर्ट, इट गिव्स यू टोटल शेडिंग इफेक्ट। ओके, तो इस तरीके से ही आपने इसको करना है। थैंक यू।